Hello student, today we are going to discuss the various types of connection that we can do in our electrical circuit. Okay, so basically we undergo two types of connection here. One is your resistance in series, other one is your resistance in parallel. Okay, so for doing the numericals in a very proper way, you should be very much okay with the rules. Okay, that is connected with series as well as parallel. Okay. Now we'll try to know that how will you know that which connection is in series and which connection is in parallel. So just see my diagram here. You can see this is only one line. I am talking in a very simple way. Okay, we are not going to the complex definition. Okay, you can just see this is simple wire. This is one wire. It has been bent, and you can see this is wire. This is single wire. Then in the single wire, you can see that various resistors are connected. This symbol denotes the symbol of resistors or resistance. Okay, so that means in one wire, three of them are connected. I am just showing for three of them. It can be 4, 5, 10, 100. Okay, depending upon the type of connection you want. Okay, so if all the resistance are connected in single wire, it is considered to be in series connection. Okay, if it is series connection, now you should follow the or you should know the rules of what happens in series connection. Okay, the first rule is that in series connection, through every resistors, or you can say through every appliance. Here resistors are considered to be an appliance. Okay, every appliance same amount of current is going to flow. Matlab is if through R1 5 ampere of current is flowing, that means through R2 also 5 ampere of current will flow, and through R3 also 5 ampere of current will flow. It will not change. Okay, that's what I have written here. In series connection, the current flowing through each resistor is same. That is, through each resistance, equal amount of current will flow. Okay. Number two, that means if the current is same, something to change. What means, because resistance are already fixed here, only what we are left with, potential difference, that is our voltage. Okay. So in series connection, the potential difference across every resistor is different. That means R1 के लिए अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के लिए अलग होगा, R3 के लिए अलग होगा. ठीक है. तो नंबर 3 में if you want to find the potential difference through each resistor, suppose you want to find for R1. So what I have to take the formula? V1 is equal to IR1 because I is your constant. Similarly for R2, it will become V2 equal to IR2. For R3, it will become V3 equal to IR3 and dot 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 it will continue. Okay, if it is V4, you will write here V4 equal to IR4. Number 4, if you want to find the total potential difference of the circuit, entire circuit, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबको प्लस कर दो. मतलब V को निकालने के लिए V1, V2, V3, V4 को क्या करना है? प्लस करना है. Now total resistors, so total resistance, or sometimes in the book they say equivalent resistance. Okay, if you want to find the equivalent resistance at that very moment, you can, I have showed you the way how the formula came. Okay, directly also you can say that R equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot dot dot. Okay, this is for the, this is R is the total resistance. If you want for total resistance in terms of series, सबको प्लस करना पड़ेगा. मैंने ये क्या दिखा यहाँ पे? I have showed you there how you can take out. So what I have done here, V equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot dot dot. V का मतलब क्या होता है? For Ohm's law we know V is equal to IR. मैंने क्या लिखा? IR. V1 का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे V1 इक्वल कितना है? IR1. तो IR1 लिखा मैंने. V2 दाम कितना है? IR2 मतलब IR2 लिखा मैंने. V3 दाम कितना है? IR3 मैंने तो IR3 लिखा यहाँ पे. यहाँ पे देखो सब में क्या है? I कॉमन है कि नहीं? तो I टेकन कॉमन हियर. तो क्या बचेगा? R1 plus R2 plus R3. I कैंसिल, मतलब R इक्वल टू R1 plus R2 plus R3 plus डॉट डॉट डॉट. ओके, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस या फिर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, हमेशा ये माइंड में रखा करो कि जब भी तुम सीरीज कनेक्शन में अगर तुम टोटल रेजिस्टेंस को निकालते हो तो तुम्हारा जो पकड़ लो कि क्वेश्चन में क्या दिया है? R1 का वैल्यू 5 दिया है, R2 का वैल्यू 10 दिया है और R3 का वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है. ठीक है ना. तो जब तुम R निकालोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबको प्लस करना पड़ेगा. सबको प्लस करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 कितना आएगा? 45. 45 क्या यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? R3 है ना. तो मतलब तुम्हारा जो 45 है वो R3 से बड़ा है. इसमें क्या लिखा है? जब भी हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सीरीज में, द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर. किससे ज्यादा होगा? हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इंडिविजुअली जो सबसे बड़ा होगा उससे भी तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. अगर इनफैक्ट कभी गलत, कभी अगर
when you're doing the numerical, अगर कभी R का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीरीज में R1, R2 या फिर R3 किसी का वैल्यू से कम आ गया तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं पे गलत है. That's why the total resistance in a always higher than the highest individual resistance. Next we will come to resistance in parallel. तो यहाँ पे अगर पैरेलल में अगर तुम देखोगे तो क्या है, यहाँ पे देखो तो यहाँ से एक ही वायर गया, जैसे ये जो इस एंड में जब वायर आया, कैन यू सी दैट द वायर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3. मैंने 3 दिखाया है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, 6, 100 भी हो सकता है. जब एक वायर से डिफरेंट वायर को तुम कनेक्ट करते हो तो उसमें क्या डिफरेंट अप्लायंसेस से कनेक्ट हुआ है, मतलब डिफरेंट क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है कि नहीं. तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं. और पैरेलल और एक तरीका से भी करते हैं, कहते हैं क्योंकि ये देखो तो ये वाला मतलब ये R1 का लाइन, R2 का लाइन, R3 का लाइन, देखो ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं है. तो दिस लाइन से पैरेलल है, दैट मींस द कंसेप्ट टू बी पैरेलल. और सिंपल वे में हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक वायर से कोई सी पॉइंट अगर डिफरेंट वायर्स अगर निकलता है और डिफरेंट वायर में डिफरेंट अप्लायंस को कनेक्टेड करते हो तो उस टाइप का कनेक्शन क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे पैरेलल कनेक्शन. तो पैरेलल कनेक्शन रूल क्या बोलता है, पैरेलल कनेक्शन जो होता है वो सीरीज का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. पैरेलल में क्या, सीरीज में क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था. जब हम पैरेलल में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा. यहाँ पे क्या लिखा है, इन पैरेलल कनेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम. दैट इज R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो अप एंड डाउन नहीं करेगा. ठीक है. नंबर 2 में जब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा. तो इन पैरेलल कनेक्शन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर चेंजेस विद द चेंज इन द, जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, जैसे R1 का वैल्यू अलग होगा, R2 का वैल्यू अलग होगा, R3 का वैल्यू अलग होगा, जैसे जैसे R1 का वैल्यू चेंज होगा वैसे तुम्हारा करंट भी चेंज होगा. मतलब अगर 12 अप्लायंस रखोगे तो ज्यादा करंट चाहिए होगा. 12 अप्लायंस का मतलब ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का अमाउंट भी ऊपर नीचे करते जाएगा. तो इन पैरेलल कनेक्शन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर चेंज विद द चेंज इन द रेजिस्टेंस. तो करंट चेंज को देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR है. I निकालने का मतलब क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा. ठीक है ना. तो अगर तुमको करंट निकालना है थ्रू R1, थ्रू R2, थ्रू R3, हम क्या करेंगे, I1 इक्वल टू V तो कांस्टेंट है तो V बाय R1 हो जाएगा, I2 इक्वल टू V बाय R2 हो जाएगा, I3 इक्वल टू V बाय R3 हो जाएगा. ठीक है ना. टोटल करंट निकालने का होगा तो क्या करेंगे, सारा जो I1, I2, I3, I4 जो है सारा कनेक्ट करना पड़ेगा, ये भी प्लस करना पड़ेगा. इसमें मैंने क्या लिखा, टोटल करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस दो. अब आ गया नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 को मैंने प्लस किया. I का जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाय R. मैं क्या लिखा, V बाय R लिखा. I1 की जगह में व्हाट कैन आई राइट, V बाय R1. I2 जगह में V बाय R2, I3 जगह में V बाय R3 लिख सकते हैं. तो यहाँ से मैंने V कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3. V कट दिया, कितना बचेगा, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस दो डॉट. ओके. तो हमेशा याद रखो ये R इक्वल टू 1 बाय R1 नहीं है, ये 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट डॉट करके हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा. नंबर 5 ये देखो यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में, पहले में क्या बोला था मैंने सीरीज में कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें जो सबसे छोटा होगा उससे छोटा होना चाहिए. मतलब इसमें आप अगर पकड़ लेते हैं कि हम अगर I1 का वैल्यू पकड़ लो 5 है, I2 का सॉरी R1 का वैल्यू 5 है, R2 का वैल्यू 10 है और R3 का वैल्यू 20 है. तो हमें क्या देखना, अगर जब हम पैरेलल में करेंगे तो जब हम तब हमारा R का वैल्यू निकलेगा वो पकड़ लो, सबसे छोटा कौन है यहाँ पे 5 है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5 से भी छोटा होना चाहिए. अगर कभी भी गलती से पैरेलल कनेक्शन कर रहे हो और अगर तुम्हारा आंसर अगर सबसे जो छोटा वैल्यू है उससे बड़ा आ गया तो उसी जगह में समझ जाना चाहिए कि मेरा आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, तो सबसे छोटा है, छोटा से भी छोटा होना चाहिए, तभी जाकर वो आंसर करेक्ट रहेगा. ठीक है. तो 2, 3. So we are going to discuss some of the numericals from our book, okay, regarding the parallel and series connection. Okay, page number 216, question number 4. Okay, they say that how can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm, and 6 ohm be connected to give a total resistance of how much है 4 ohm and 1. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि
तुमको R1 R2 R3 दिया है, मतलब 2 दिया है, 3 दिया है और क्या दिया है, 6 दिया है। बोला कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करने से क्या होना चाहिए, हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस, तो या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए हमारे पास 4। हमारे दो ऑप्शन है, सीरीज या फिर पैरेलल। हमने जस्ट रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ सीरीज। सीरीज में क्या बोला था कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सबसे बड़ा जो वैल्यू है, जो 6 जो है उससे भी बड़ा हो जाएगा सीरीज में। तो हमारा आंसर हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए। वो 6 से छोटा है ना, तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, सीरीज तो नॉट पॉसिबल। देन पैरेलल में करने से क्या होगा, जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा से भी क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा आंसर। तो वो भी नहीं है, क्योंकि ये जो 4 जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम सीरीज भी नहीं कर पाएंगे, पैरेलल भी नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट डू सीरीज, नाइदर यू कैन डू पैरेलल। ओके, तो हमें क्या चाहिए, इस टाइप के केसेस में हमको कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमें सोचना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग हियर, ठीक है। तो मैं देखा यहाँ पे कितना है, 2 है। 2 के साथ कितना प्लस करने से 4 मिलेगा, मतलब 2 + 2 होने से 4 मिलेगा। तो मैंने 2 को सेपरेट कर दिया, इस दोनों के बारे में सोचा मैंने। ये अगर ये दोनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या आएगा, 3 से कम आएगा। 3 से कम तो 2 भी आ सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे R2 और R3 को क्या करते हैं, काइंड इन पैरेलल। फॉर्मूला क्या हमारे पास, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लेकिन कौन कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, R2 और R3 है। तो मैंने बस R2 और R3 को क्या कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो 1/R = 1/R2 + 1/R3। मैंने R क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि R जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस होता है, और ये टोटल नहीं है अभी। हाँ, इसीलिए दोनों कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ, इसलिए वो तो आंसर फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए आई राइटिंग R' है। तो R2 का वैल्यू कितना है, 3, और R3 का वैल्यू कितना है, 6 है। दोनों का एलसीएम लिया तो 1/R' कितना मिला हमको, 1/2 मिला। कौन सा करो, R' × 1 is R', 2 × 1 is 2। आंसर कितना है यहाँ पे, मतलब ये दोनों को कंबाइन करने के बाद कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। तो मेरा सर्किट जो है कैसा बन जाएगा, ऐसे ये R1 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वो R' बन जाएगा। आप देखो तो R1 और R' कैसा कनेक्शन है, एक ही लाइन में है ना, तो वो सीरीज हो जाएगा। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, हियर R1 एंड R' काइंडेड इन सीरीज। तो R = R1 + R', 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 Ohm वी शुड कनेक्ट R2 एंड R3 इन पैरेलल। देखो R2 R3 क्या कनेक्ट किया हम लोग ने, पैरेलल में किया, और R1 में क्या में कनेक्ट करेंगे हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। नंबर 2 में क्या बोले, देखो 1 Ohm हमें कितना निकालना है, 1 Ohm निकालना है हमको। 1 Ohm के लिए 1 जो है, दिस 1 वैल्यू इज सब है, ठीक है। तो हमको कितना चाहिए, हमको 1 चाहिए। जब 1 चाहिए तो यहाँ पे जो R1 और R2 और R3 का जो वैल्यू दिया है, उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन है, लोएस्ट वैल्यू 2 है। हाँ, और 2 जो क्या है, 1 जो आंसर जो निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट 1। 1 क्या होता है, वो तो 2 से भी क्या है, छोटा है, इजंट इट। तो वी कैन एज्यूम दैट, शायद हम अगर पैरेलल कंसीडर करेंगे तो शायद हमारा आंसर क्या हो सकता है, आ सकता है। मैंने क्या किया यहाँ पे, R1 R2 R3 का कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, मतलब 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखो वैल्यू डालो यहाँ पे, 2 3 एंड 6 ऐसे निकालो, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा हमको। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमको 1 चाहिए तो हमको R1 को, R2 को और R3 को क्या कनेक्ट करना है, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जाइयो। इसमें क्या बोला है कि क्या निकालना है हमको, हाईएस्ट और क्या निकालना है, लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। हमें कुछ दिया गया है, दे हैव गिवन अस सम रेजिस्टेंस टू R1 R2 R3 एंड R4 दिया है, हमें बोला हाईएस्ट। तो हमको बस थ्योरी में जाना है। थ्योरी में क्या बोला था, हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वी हैव टू गो फॉर द सीरीज कनेक्शन। तो ये में लिखा है हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड R4 को क्या में कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। मतलब R = R1 + R2 + R3 प्लस जो होगा R4। सारा का वैल्यू पुट करो, कितना मिलेगा, 48। और ये 48 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट में क्या बोला है, टोटल रेजिस्टेंस, मतलब लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस बोला है। तो जब लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस बोला है, हमें पता है कि अगर तुमको लोएस्ट निकालना है तो क्या में कनेक्ट करना पड़ेगा हमको, पैरेलल में। हाईएस्ट के लिए सीरीज, लोएस्ट के लिए पैरेलल कनेक्शन। तो इसका मतलब फॉर लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड R4 शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वैल्यू पुट करो, करने के बाद एलसीएम निकालने का कितना मिलेगा हमको, 2 Ohm मिलेगा। मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 48 होगा, और सबसे लोएस्ट कितना हो सकता है यहाँ पे, 2 Ohm हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, विल जॉइन इन द नेक्स्ट क्लास।